Again, listen to me carefully. कि हम क्या कहते हैं, first before we go to the conditions of equilibrium, we are going to remind the definition of equilibrium. What we say that when the net force on a body is zero, then the body is considered to be in the state of equilibrium. For example, there are number of the forces are acting on this body. इस बॉडी में देखिए कितनी सारी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं. अब ये वाली फोर्स इसको कैंसिल करती है, ये फोर्स इसको कैंसिल करती है, ये इससे बैलेंस हो जाती है, ये इससे बैलेंस हो जाती है. हाउएवर जब हम इन तमाम फोर्सेस का सम निकालते हैं इस बॉडी पे तो उसका जवाब आ रहा है जीरो. तो इसका मतलब इस फोर्सेस पे, इस बॉडी पे फोर्सेस तो बहुत सारी लग रही हैं. दिस बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ मेनी फोर्सेस बट द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो. So this is considered to be in the state of equilibrium. Then further I taught you, it is not necessary that a body in equilibrium must be at rest. जरूरी नहीं है कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो रेस्ट में ही होगी. ऐसा जरूरी है, ऐसा ऐसा लाजिम है कि वो रेस्ट में हो? No. नो. फिर क्या हो सकता है? Uniform motion. State of uniform Yeah, motion. good. It can be in uniform motion and State of rest. State of rest. it may be in the state of rest. Good. And In rotational motion. good. It may be in rotational motion, uniform rotational motion. So, however, it means that there are three types of equilibrium. One is static equilibrium, second dynamic, and third Rotational. रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके, ये तो सब हमने कल की क्लास को रिकॉल किया है. ठीक है, अब हम आगे की आज जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पर. अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि दो फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कब करती हैं, दोनों का इफेक्ट जीरो कब होता है. देखिए यहाँ पर ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ. इसका नाम रख देता हूँ मैं F1 और इसका नाम रख देता हूँ F2. देखिए इस कंडीशन में F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? Yes, sir. करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? Same. सेम है. Same. 50 न्यूटन 50 न्यूटन. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. Same. और डायरेक्शन क्या है? Opposite. ऑपोजिट है. गुड. तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी. इसका मतलब यहाँ पर ये जो है इस पे नेट फोर्स जीरो होगी. अच्छा, आप जरा गौर कीजिएगा, ये दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन पर है या अलग अलग लाइन पर है? एक ही लाइन पर है. एक ही लाइन अलग-अलग पर है. लाइन. तो इनका लाइन ऑफ एक्शन देखें सेम है. ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के ऊपर आ रही हैं. ऐसा ही है ना? यस. ठीक है. और गौर कीजिए, तो ये फोर्स पड़ रही है कौन से एक्सिस पर? Y. ये दोनों जी, these two forces lie on y-axis. Okay, now look at another example. There are two forces. Let's say this is the force of 100 Newton and this is the force of 100 Newton again. Will they cancel the effect of each other? Yes. Okay. Yes. Okay. Why? They will balance each other. Why? Because the magnitude of the magnitude of both forces is 100 Newton. Means magnitude of both forces are same, Same. but their directions are opposite. Different. That means Opposite. Don't say different. Different means they may be in any direction. We are not talking about the difference of direction. We are talking about opposition of direction. Means two forces having the same magnitude but opposite in direction. They must cancel the effect of each other. Over here, this 100 Newton will cancel the effect of that 100 Newton. So these two forces are acting on the body. What about their line of action? Is their line of action same or different? Same. Okay, Same. their line of action is same. Good. So do remember, दो फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल करती हैं तो दिमाग में ये बात आपको रखनी होगी. फर्स्ट थिंग their magnitude must be same. नंबर 1. अगर आपसे एक सवाल किया जाता है, एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है लिखने को कि when do the two forces cancel the effect of each other? So how would you write the answer? There are three conditions. Number 1, their magnitude must be same. Number 2, Opposite. their direction must be opposite. Opposite. Number 3,
Number 3 is Line that straight line. their In straight line, line. their line of action must be same. They must be acting on a same line. ठीक है, line of action same होने का मतलब क्या है? देखो, this vector is F1 and F2. They are in the same direction. Oh sorry, on a same line. अब अगर ये फोर्स यहाँ होती और ये फोर्स यहाँ होती, तो देखें दोनों फोर्सेस ऑपोजिट तो है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का इक्वल है, बट व्हाट इज डिफरेंट? व्हाट इज द डिफरेंस? Line of direction. Line of Their direction. line of action, not direction, line of action. Their line of action are different. So when their line of action are different, what will happen to the body in this way? चले क्या होगा वो भी आगे जाके देखते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को यहाँ रोक दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ दो फोर्सेस हैं, दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं और दोनों का सम जीरो आ रहा है। इस तरह ये दोनों वाई एक्सिस पे हैं, दोनों का सम जीरो आ रहा है। दैट मीन्स सर ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, उसकी दो शर्तें हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम पहले। फर्स्ट कंडीशन को अगर आप शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि ऑल द फोर्स, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, फॉन्ट साइज या बड़ा करूं? ठीक है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। कि किसी भी बॉडी पर तमाम फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो साइन मैं बनाने जा रहा हूं इसको हम कहते हैं समीशन। क्या कहते हैं? समीशन। दैट मीन्स सम ऑफ, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब सपोज कीजिएगा, बल्कि मैं समीशन का लाइन बाद में लिखता हूं, पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। सपोज कीजिएगा कि यहां पर हमारे पास नेट फोर्स जो है वो, यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन, जितनी भी फोर्सेस हैं सबका सम क्या आना चाहिए? जीरो। अब इन सबको मैं इतनी लंबी लाइन लिखने के बजाय इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सिग्मा एफ। इसको पढ़ते क्या है? सिग्मा एफ। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, आपको पता है हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। आपको बुक्स के अंदर जो मिलेगा, बुक्स के अंदर आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो इसको डिवाइड करके लिखा हुआ मिलेगा। वो कहते हैं जी अगर फोर्सेस का सम जीरो है, इसका मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम भी जीरो होना चाहिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. दिस इज द फर्स्ट, बेटा दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है। इसके अंदर हमने पहले तो सिर्फ आपको ओवरऑल बात कर ली कि भाई एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबका सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बाद में हम ये बता रहे हैं कि सर अगर हम उन फोर्सेस को रिजोल्व करें, जैसे इसको F1 को अगर रिजोल्व करेंगे तो इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा, एक वाई, इसी तरह इसका भी एक्स और वाई कंपोनेंट होगा, इसका भी एक्स और वाई कंपोनेंट होगा। फिर सारे एक्स कंपोनेंट का सम क्या होना चाहिए? जीरो, और सबके वाई कंपोनेंट का सम भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इज दिस क्लियर? Yes. So this is called the first condition of equilibrium. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो गई है। अब सेकंड कंडीशन पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सही रजिस्टर में करना है? बिल्कुल करना है, तभी तो बता रहा हूँ। अब इसका करने का तरीका ये होगा, जाहिर है आपके पास अभी इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये सब कॉपी करें बोर्ड से, तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते रहें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। फिर जब टॉपिक एंड हो जाएगा मैं बता दूंगा टॉपिक इज ओवर नाउ, आप फिर उस तक आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सर थोड़ा सा बोर्ड उस तरफ कर ले, अपनी तरफ। बोर्ड अपनी तरफ कर लूँ मतलब आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा ये बताएं।
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा मुझे, आपने थोड़ा बोर्ड है ना आगे का, वो नजर नहीं आ रहा। इससे आगे जी सर। बेटा आपकी जो डिवाइस है उसके व्यू में प्रॉब्लम है, मेरा कैमरा पूरे बोर्ड को कवर कर रहा है। नहीं सर, मेरे ना वो लैपटॉप पे लेती हूँ ना, उसमें उन लोग कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे हुए आ रहे होते हैं ना, इस वजह से तो नहीं। उनको हटा देना, उनको मिनिमाइज कर दें। अच्छा। आप अपनी अपनी उस पे जाएं जहाँ पे आपका अपना नाम आ रहा है ना, आप वहां से उसको सिर्फ अपने आप को हाईलाइट कर दें, ठीक है। मिनिमाइज कर देंगे आप पार्टिसिपेंट्स के नाम, तो आप अकेले नजर आएंगे पूरी स्क्रीन पे। ओके। ओके हुरैन बेटा कुछ कह रही हो? नहीं सर। ओके ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अब देखें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पेश आई। हमने तो यहाँ पे बता दिया नेट फोर्स जीरो है। एक बड़ी अहम बात जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि देखें इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, यानी एक फोर्स यहाँ आ जाए दूसरी यहाँ, देखिए यहाँ पर अगर एक ये वाली फोर्स यहाँ हो 100 न्यूटन की और एक ये वाली फोर्स यहाँ हो 100 न्यूटन की, तो सर अब भी फोर्सेस तो सेम है, 100 न्यूटन 100 न्यूटन, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? लाइन सेम नहीं है। their line of action their line of action is not same. Okay, thank you beta. their line of action is not same. ठीक है, एक्सीलेंट मलाहिम गौरी, बेहतरीन आंसर किया आपने। their line of action is not same. अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो क्या होगा, अब बताइए रिजल्ट क्या होगा इसका? जीरो नहीं होगी। क्या होगा इसका? और से सुनिएगा बात, चले मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। कैन यू सी दिस? व्हाट इज दिस? रस्टर है, इसको देखिएगा जरा। इस पर एक फोर्स मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, एक फोर्स यहाँ से लगाता हूँ, ठीक है, यूं कर लेते हैं इसको। अब आप देखिए अगर मैं इस पे दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये अपनी जगह पे इक्वल इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये दोनों फोर्सेस में, लेफ्ट हैंड की फोर्स और राइट हैंड की फोर्स दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, इस पर नेट फोर्स जीरो हो गई। यही इक्वल फोर्स मैं एक अगर यहाँ से लगाऊं और दूसरी यहाँ से लगाऊं तो क्या होगा? देखिए ये एक फोर्स मैं ऊपर से ऐसे लगा रहा हूँ यहाँ पर और नीचे दूसरी तरफ से फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, तो क्या होगा? क्या ये इसका नेट फोर्स कैंसिल तो कर देंगे, लेकिन डस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गुड। इकरा अजीज ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें रोटेशन आ जाएगी। देखे ना, एक फोर्स यहाँ से लगे एक फोर्स यहाँ से लगे तो इट विल बिगिन टू रोटेट। क्लियर? यस सर। है ना, रोटेट करेगा। तो अगर रोटेट करेगा, यू नो व्हेन द बॉडी बिगिंस टू रोटेट, जब बॉडी किसी एक्सिस के गिर्द घूमने लगती है तो क्या बनता है? टॉर्क आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें अगर ये दोनों फोर्सेस, अच्छा ऐसी फोर्सेस को कहते हैं पैरेलल एंड अनलाइक फोर्स। क्या कहते हैं? पैरेलल एंड अनलाइक फोर्स, यानी एक दूसरे के पैरेलल तो है पर डायरेक्शन में ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये वाली फोर्सेस क्या करेंगी, इसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। सॉरी बेटा, एक चीज मैं आपको चेंज कर दूं इसमें, ये पैरेलल नहीं, ये कपल फोर्स है, इसको कपल फोर्सेस कहेंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, अनलाइक नहीं है, ये कपल है। हाउएवर दो फोर्सेस जो के जिनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। इन दोनों फोर्सेस को हम कहते हैं कपल फोर्सेस या कपल, ठीक है। तो आगे की बात सुनिएगा, इसमें रोटेशन पैदा हो जाएगा, मींस इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। उस टॉर्क को प्रोड्यूस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टॉर्क इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी जीरो। तमाम टॉर्क का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, यानी जितने भी टॉर्क क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो सबको प्लस करके जवाब क्या आना चाहिए? जीरो।
That means torque 1 plus torque 2 plus torque 3. टॉ 1, अब आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक है ना? टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3, ये टॉ जो है सिंबल है, आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही टॉर्क का. सो द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0. इस पूरी लाइन को शॉर्ट करके कैसे लिख सकता हूँ? Summation of all the torque must be equal to 0. Is this clear to all of you, beta? Yes, sir. These are the two conditions of equilibrium. These are the two conditions of equilibrium. Okay, now please take the screenshot of this, and if you have any question, you may ask.